بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کام کر گئی۔ صرف پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے آرڈیننس معطل کیا گیا۔ موٹر سائیکل، کار اور دیگر گاڑیوں کے لیے آرڈیننس موجود رہے گا۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر سے مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ ٹریفک آرڈیننس 2025 کے نفاذ کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے پہیا جام ہڑتال کی تو پنجاب بھر میں پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کو بریک لگ گئی۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے سامان کی ترسیل روک دی۔ شہریوں کی آمد و رفت اور کمرشل سرگرمیاں متاثر ہونے پر حکومت حرکت میں آئی۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ٹرانسپورٹ ہاؤس میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر سے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے کہا، آرڈیننس کی معطلی صرف پبلک ٹرانسپورٹ کی حد تک ہے۔ موٹر سائیکل، کار، گاڑیوں کے جرمانے قانون کے مطابق ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹرانسپورٹرز کے مطالبات پورے کریں گے۔ 2-3 روز سے بات چل رہی تھی، اگلے 8 سے 10 روز میں متفقہ حل نکال لیں گے۔ جب تک ہم آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل نہیں کریں گے، مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ جو فائننگ ہو رہی تھی اس کی کچھ وجوہات تھی، لیکن ابھی ہم اس کو سسپینڈ کر کے ان کے ساتھ جب بات کرنی شروع کریں گے، ہم اس کو ریشنلائز کریں گے اور شاید کوئی ایسا مسودہ نکل کے آئے جو کہ سب کو قابل قبول اور انشاءاللہ نکلے گا۔ جو پرائیویٹ وہیکلز ہیں، جو موٹر سائیکلز ہیں، ان کی ابھی ویسے ہی ایز اٹ از جو قانون ہے اس کے مطابق چلے گا۔ نو ون ویلنگ، نو ون وے وائلیشن، کوئی گاڑی والا کالے شیشے لگا کر نہیں پھرے گا، کوئی ٹریفک کی وائلیشن نہیں کرے گا، اس کو اسی طرح ہیوی فائنز ہوں گے۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز نے مذاکرات کے بعد ملک بھر میں گوڈز اڈے کھول دیے۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز نبیل محمود طارق نے کہا کہ صوبائی وزیر بلال اکبر کی جانب سے آرڈیننس بارے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیورز پر خلاف ورزی کی صورت میں FIR نہیں ہوگی۔ کمرشل گاڑیوں کے چالان پر پرانے جرمانے ہوں گے۔ ریویو کمیٹی حکومتی آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، ہمارے جتنے بھی اڈے ہیں پنجاب میں، گوڈز ایجنسیاں، جتنی بھی ایسوسی ایشن ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار بند رکھا ہوا تھا، آج ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں۔ ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں آج کی ہڑتال کو، اور تمام دوستوں سے میری گزارش ہے اپنی اپنی گاڑیاں روڈ پہ لے آئیں، اپنے اپنے کاروبار، اپنی بکنگ وہ سٹارٹ کر لیں۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ صوبائی وزیر بلال اکبر کی جانب سے آرڈیننس بارے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ریویو کمیٹی حکومتی ٹیم کے ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالے گی۔ ہڑتال کے خاتمے پر ٹرانسپورٹرز 2 دھڑوں میں تقسیم۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صدر حاجی شیر علی کا منی مزدہ ایسوسی ایشن کا ہڑتال ختم نہ کرنے کا فیصلہ، بولے ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، ہڑتال جاری رہے گی۔ آرڈیننس کی معطلی کے نوٹیفیکیشن تک ہڑتال جاری رہے گی۔ آج 8 اکتوبر کو ہماری پورے ملک میں پاکستان منی مزدہ گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال تھی۔ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، ہم نے ایک جسٹ کیا کہ ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن دیا جائے، جو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، انہوں نے ہولڈ کیا ہے، ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا، تو آپ میں اپنی جو ہڑتال ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ہماری ہڑتال کھلی، ہم انشاءاللہ ہڑتال میں جائیں گے، ہڑتال میں گئے ہیں، ہماری پورے ملک میں ہڑتال ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آج 2025 بنایا ہے اس کو فریز کرنے کا، اس کو معطل کرنے کا ہم نوٹیفیکیشن دیا جائے، پھر ہم کھولیں گے۔ اس میں 15 لاکھ کا چلان ہے مزدہ کا، عدیت ہے اپنا 96 لاکھ روپیہ، اس میں نجائز FIR ہیں، یہ تمام چیزیں ایڈ کی، اس کو ختم کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا، یہ کہنا ہے مریم اورنگزیب کا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں اور ان کے بچوں کی جان پر سمجھوتا ہرگز نہیں کریں گے۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین سے متعلق قانون پر مؤثر عمل درآمدی کا حکم جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ ٹریفک آرڈیننس پر وزیر اعلیٰ کے دیے اہداف کو پورا کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ کہنا تھا، ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آگاہی مہم تیز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا، شہریوں اور ان کے بچوں کی جان پر سمجھوتا ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ٹریفک قوانین سے متعلق قانون پر مؤثر عمل درآمد کا حکم جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ کہا کہ ٹریفک آرڈیننس پر وزیر اعلیٰ کے دیے ہوئے اہداف کو پورا کریں گے۔ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آگاہی مہم تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کا تعلیمی اداروں کے باہر کیمرے نصب کرنے کا حکم، پولیس کو تعلیمی اداروں میں فرضی مشقوں کی ہدایت بھی کر دی۔ دوسرے صوبوں سے آنے والی بسوں کے ڈرائیور عملے کے رجسٹریشن کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत जारी की गई है। घरों मार्केटों के कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म भी दिया गया है। तालीमी इदारों की डिजिटल निगरानी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने तालीमी इदारों में कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और सीसीटीवी लाजमी करार दे दी गई। पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ तालीमी इदारों में फर्जी मशकों की भी हिदायत की गई है। लाहौर समेत हर शहर में सीसीटीवी कैमरों की कवरेज यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। घरों मार्केटों में लगे सीसीटीवी कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक होंगे। दूसरे सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर और अमले की रजिस्ट्रेशन होगी। पंजाब भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। गैर कानूनी मुकीम अफगारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शहरियों से राब्तों का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने डीसी और डीपीओ को मुतल्लिका इलाकों में उमाइदीन से राब्ते की हिदायत की है। पंजाब में मुकीम दूसरे सूबों के शहरियों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि शहरी अपने इर्द गिर्द मशकूक मुश्तबा अफराद और सरगर्मियों पर नजर रखें। शहरी मशकूक सरगर्मी या मुश्तबा अफराद की 15 पर फौरी इत्तला दें। अब यहाँ पर बात करें, बागों का शहर फिर आलूदगी के निरके में आ गया। जहरीली फजा से सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। शरह 408 रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटेरिएट में शरह 870, कैंट में 828 रही। माहिरीन की शहरियों को एहतियात करने और मास्क लगाने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ने लगी, जबकि पारा 18 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त AQI की मजमूई शरह 408 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 800 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की सबसे ज्यादा शरह 870 रिकॉर्ड की गई। कैंट में AQ लेवल 828 रहा। बरकी रोड 723, इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 613 रिकॉर्ड की गई। अस्करी टर्न 386, इकबाल टाउन 228, DHA फेज 5 206, बेदिया रोड 199, गुलबर्ग 2 में 194 AQI रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी से शहरी नजला, जुकाम, खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मोक और फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए माहिरीन ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PND बोर्ड का इजलास 59 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। कॉलेजेस में सहूलियात की फराहमी के लिए 6 अरब 73 करोड़ मंजूर, जबकि क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के कयाम के लिए 14 अरब 59 करोड़ की मंजूरी दी गई। जुडिशल टावर 1 की तामीर के लिए 9 अरब 15 करोड़ फंड मंजूर किए गए। जुडिशल टावर 2 लाहौर की तामीर के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दूसरी जानिब सूबे के सरकारी स्कूलों में तालीमी इस्लाहात का अमल तेज कर दिया गया है। की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 59 अरब से जायद फंड्स की मंजूरी। वजीर आला के प्रोग्राम के तहत कॉलेजेस में मिसिंग सहूलियात की फराहमी के लिए 6 अरब 73 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के कयाम के लिए 14 अरब 59 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। PND बोर्ड के इजलास में अहम फैसले किए गए। लाहौर में जुडिशल टावर्स की तामीर के लिए मजमूई तौर पर 26 अरब से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। CNW डिपार्टमेंट में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के कयाम के लिए 1 अरब 16 करोड़ और PSIC और SIAs में मिसिंग सहूलियात की फराहमी और अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 75 करोड़ के फंड्स की भी मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब सूबे के सरकारी स्कूलों में तालीमी इस्लाहात का अमल तेज कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 3 नई तालीमी स्कीमों का तखमीना मुकम्मल कर लिया है, जिनकी मजमूई लागत 12 अरब 47 करोड़ रुपए तजवीज की गई है। समरी ऐवान वजीर आला को भिजवा दी गई और हतमी मंजूरी दरकार है। मुजव्वदा मंसूबों में 10 डिवीजन में सेंटर बराए इब्तदाई बचपन की तालीम के कयाम के लिए 3 अरब रुपए, सरकारी स्कूलों में जदीद स्टीम लैब्स के कयाम के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि लाहौर में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फेज 2 के लिए 1 अरब 97 करोड़ रुपए का तखमीना शामिल है। मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन और डाटा की तस्दीक का अमल तेजी से जारी है। 3339 शहरियों की दरख्वास्तों की दोबारा से जांच पड़ताल होगी। हुकूमत पंजाब ने राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत अशियाए खोरोनोश की खरीदारी में मदद फराहम करने के लिए 4 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है। प्रोग्राम के तहत मुतल्लिका महकमे रजिस्ट्रेशन, तस्दीक और डाटा वेरिफिकेशन का अमल जारी रखे हुए हैं। DHA का जदीद प्रोटेक्टेड यूटर्न्स मंसूबा लाने का फैसला। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 प्रोटेक्टेड यूटर्न्स का डिजाइन तैयार कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर ने रेजिडेंट्स को सिग्नल फ्री मूवमेंट देने का फैसला किया है। DHA वतीन चौक पर मंसूबे के काम का आगाज करेगा। फेज 6 और वतीन चौक में बुलेवार्ड 2 साइड प्रोटेक्टेड यूटर्न बनेगा। लम्स और फेज 4 किताब चौक की जानिब भी प्रोटेक्टेड यूटर्न होगा।
वतीन चौक फेज 5 पर शहरी ट्रैफिक मसाइल का शिकार। DHA ने जदीद प्रोटेक्टेड यूटर्न्स मंसूबा लाने का हतमी फैसला कर लिया। DHA सिग्नल फ्री कॉरिडोर टू प्रोटेक्टेड यूटर्न्स का डिजाइन तैयार कर लिया गया। रेजिडेंट्स को सिग्नल फ्री मूवमेंट दी जाएगी। DHA इंजीनियरिंग विंग ने प्रोटेक्टेड यूटर्न्स रीमॉडलिंग का डिजाइन तैयार किया। DHA आइंदा चंद रोज में वतीन चौक पर मंसूबे के काम का आगाज करेगा। वतीन चौक से फेज 6 और वतीन चौक मेन बुलेवर्ड पर 2 साइड प्रोटेक्टेड यू टर्न होगा। लम्स चौक पर वतीन चौक के दरमियान एक सिग्नल साइड यू टर्न बनाया जाएगा। वतीन चौक पर फेज 4 किताब चौक की जानिब भी प्रोटेक्टेड यू टर्न होगा। वतीन चौक पर पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया था। इससे कबल DHA ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर फेज 1 पर काम किया था, जो कामयाब मॉडल बना। एडमिनिस्ट्रेटर DHA की हिदायत पर स्मार्ट और ट्रैफिक फ्रेंडली सोल्यूशन लाया जा रहा है। सुई गैस नेटवर्क की बुनियाद पर तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयत लाखों सार्फिन गैस कनेक्शन से महरूम हो गए। शहर और मज़ाफ़ात के इलाकों में सार्फिन को गैस कनेक्शन फ्राहमी नेटवर्क से मशरूत है। पाबंदी के दौरान आबाद होने वाली स्कीमों और टाउन्स में नेटवर्किंग नहीं की गई। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी से कई इलाकों में गैस नेटवर्किंग नहीं की जा सकी। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस की तरक्याती स्कीम्स पर पाबंदी का मामला संगीन होने लगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की नेटवर्किंग न होने से लाखों सार्फिन गैस कनेक्शन से महरूम हो गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में डेवलपमेंट स्कीम्स पर वफाक ने पाबंदी लगाई थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में गैस नेटवर्किंग नहीं की जा सकी। वफाकी हुकूमत ने LNG की बुनियाद पर सार्फिन को कनेक्शन देने की मंजूरी दी और सार्फिन को सिर्फ कंपनी के मौजूदा नेटवर्क पर कनेक्शन देने की इजाजत दी गई है। पाबंदी के दौरान आबाद होने वाली स्कीम्स और टाउन्स में नेटवर्किंग नहीं की गई। शहर और मज़ाफ़ात के इलाकों में सार्फिन को गैस कनेक्शन फराहमी नेटवर्क से मशरूत है। और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अनोखा कारनामा, नए टीचिंग अस्पताल चलाने के लिए दिहाड़ी पर डॉक्टर्स की भर्ती कर ली। मेडिकल अफसर को एक शिफ्ट की दिहाड़ी 8,000 रुपए मिलेगी। दूसरी जानिब टीचिंग अस्पतालों बारे मरीजों की पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की भरमार लग गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अनोखा कारनामा, नए टीचिंग अस्पताल चलाने के लिए दिहाड़ी पर डॉक्टर्स की भर्ती कर ली। अस्पतालों के लिए दिहाड़ी पर 54 डॉक्टर्स रख लिए गए। मेडिकल अफसर को एक शिफ्ट की दिहाड़ी 8,000 रुपए मिलेगी। सीनियर रजिस्ट्रार को एक शिफ्ट की 10,000 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। दिहाड़ी पर मेडिकल अफसर को मुस्तकिल प्रोफेसर से ज्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरी जानिब टीचिंग अस्पतालों बारे मरीजों की पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की भरमार लग गई। सर्विसेज जनरल गंगाराम अस्पताल के MS साहिबान को बढ़ती शिकायत पर नोटिस ले लिया गया। टीचिंग अस्पतालों के MS साहिबान ने 9 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के MS को नोटिस भेज दिया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के सरबराहान को भी नोटिस मिल गया। कंट्रोलर नर्सिंग एग्जामिनेशन को भी शिकायत का अजाला न करने पर नोटिस दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, MD कैट टेस्ट बुलपाव तालिबात का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, VCUHS के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन बोले कि 94% नंबर लेने के बावजूद नाइंसाफी की जा रही है। MD कैट को 3 साल के लिए वैलिड किया गया है। 2024 वाले तलबा ने 3300 में से 2500 सीटें ली। 2025 में MD कैट टेस्ट देने वाले तलबा व तालिबात का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, VCUHS के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन बोले 94% नंबर लेने के बावजूद नाइंसाफी की जा रही है। अब आज जो मेरिट क्राइसिस जब बना है, अब ये परेशान हो चुकी है। अब ये कह रही है कि मैं इसका हल कैसे निकालूं। ये कहती है जो कोर्ट ऑर्डर दे देगा मैं वो मानूं। कोर्ट कहता है कि जो एक्ट है मैं इसके खिलाफ क्या जाऊं, तो बच्चे कहाँ जाएं। 100% सीट पिछले साल सिक्योर कर चुके हैं, इस साल फिर 80% सीट्स लेके जा रहे हैं बगैर कुछ किए। तलबा का कहना था कि नई पॉलिसी के मुताबिक MD कैट को 3 साल के लिए वैलिड किया गया है। वैलिड होने से 2024 वाले तलबा ने 3300 में से 2500 सीटें ले ली। मेरे MD कैट में 93.1838 मेरा एग्रीगेट बन रहा है और इसके बावजूद जो है मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, तो इसके बाद हम कहाँ ही जाएंगे। पहले इक्विवेलेंस फार्मूला लग चुका है और इक्विवेलेंस फार्मूला लगता ही तब है। हमारी अथॉरिटीज इतनी नाअहल है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमने लगाना कैसे। पूरी दुनिया लगा रही है, हमारे लिए ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो नहीं हो पा रही। मुजाहिरीन का कहना था दोहरा म्यार है हमारा सिलेबस और चेकिंग तब्दील, पेपर भी मुश्किल हो गया, हमारा हक सल्ब किया जा रहा है। बच्चे रात दिन इन्होंने मेहनत की है। अब इनके साथ बदकिस्मती ये हो रही है कि 24 वाले बच्चों को 24 पिछले साल वाले बच्चों को अलाउ किया जा रहा है दाखिल। पहली बात तो मेरे FSC में 1144 मार्क्स हैं और मेरे इस
एग्रीगेट 93.4 बन रहा है और 93.5 पे ऑलमोस्ट जो है एग्रीगेट वो खत्म हो रहा है। तलबा कहते हैं जहां इंसाफ की अपील करते हैं वहां से आगे भेज दिया जाता है। कैमरामैन अहमर अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। दूसरी जानिब डीआईजी ऑपरेशंस ने शहर के मुताबिक चौकी इंचार्ज तब्दील कर दिए। इंचार्ज चौकी शेरशाह सब इंस्पेक्टर नदीम अली को थाना शिवाली छावनी रिपोर्ट करने का हुक्म। जनरल ड्यूटी थाना नश्तर कॉलोनी से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक इंचार्ज चौकी शेरशाह तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम चौकी नादराबाद से इंचार्ज चौकी अड्डा प्लाट तैनात। थाना मुगलपुरा से सब इंस्पेक्टर सईद अली नकी को इंचार्ज चौकी नादराबाद तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर तनवीर अब्बास को जनरल ड्यूटी थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन चौकी जनरल अस्पताल से इंचार्ज चौकी गुलदस्त टाउन तैनात किया गया। जनरल ड्यूटी थाना लियाकताबाद से सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद इंचार्ज चौकी जनरल अस्पताल तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अली चौकी सुयासल से इंचार्ज चौकी एल ब्लॉक नवाब टाउन तैनात किया गया। जिलानी पार्क में रंग, खुशबू और खूबसूरती का मेला। पार्क में हर तरफ बहार ही बहार दिखाई देने लगी। सालाना गुले दाऊदी फेस्टिवल ने पूरे पार्क को रंगीन खाब में बदल दिया। जलानी पार्क के दरो दीवार फूलों की महक से ऐसे गूंज उठे जैसे बहार ने खुद यहाँ डेरे डाले हों। फूलों की दुनिया में कदम रखते ही कदम कदम पर बहार झूमती हुई महसूस होती है। यूं रंग और खुशबू इस फेस्टिवल की असल पहचान है। पार्क में 2 बड़े इकसाम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 मैरीगोल्ड फूल शहरियों पर सहर तारी किए हुए हैं। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफेद रंग के हर तरफ बिखरे ये फूल ऐसा मंजर पेश करते हैं जो देखने वालों को पलक झपकने नहीं देता। फैमिलीज यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आई हैं और फ्लावर्स सब कुछ इतना अच्छा है और ये स्नो पॉइंट जो बनाया हुआ है ये विंटर के लिहाज से सबसे अच्छा लग रहा है। इस बार मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। जो इन्होंने बग्गियां यहाँ पर सजा के रखी हुई है ना, वो एक बहुत क्लासिक लुक दे रहा है। वुडन हाउस उन्होंने डेकोर किया है। जो पोलर बियर्स वहाँ पे हैं वो बहुत एक अच्छा दिसंबर वाइब दे रहे हैं और जो फ्लावर्स हैं वो हमें एक रिफ्रेश वाइब दे रहे हैं कम्पेयर टू द ड्राई वाइब जिसमें हम अभी चल रहे हैं। शहरियों के लिए दिलकश सेल्फी पॉइंट्स खास तौर पर बनाए गए। कहते हैं इतने सारे रंग एक साथ देखकर दिल खुश हो गया। PHA ने और गवर्नमेंट ने, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर ये गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनिशिएटिव है लाइक वन ऑफ द बेस्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली से इकट्ठी हुई हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, इट्स गुड। ये सबके लिए बनाया गया है कि सारे आके देखें, उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन एट द सेम टाइम ख्याल भी रखना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ देखा है बच्चे जो होते हैं वो फूल वगैरह तोड़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ख्याल करना चाहिए कि वो बच्चों को समझाएं। फूलों से बनी बग्गी, पाकिस्तानी परचम, दिल और मोर के मॉडल्स भी नुमाइश की जान बने हुए हैं। फवारा हो या गाड़ी, हर चीज को फूलों ने ऐसी दिलकशी दी है कि देखने वाला तारीफ किए बगैर ना रह सके। फूलों की ये दिलकश नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। गुलों में रंग भरे बादे नो सबा चले, फैज का ये शेर गुले दाऊदी नुमाइश की खूबसूरती को हकीकत का रंग दे रहा है। हजारों रंगों में खिलते ये फूल ना सिर्फ पार्क के माहौल को महका रहे हैं बल्कि आने वालों की मुस्कुराहटों में भी इजाफा कर रहे हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।